Hello student, in the last video we have discussed difference between developing and developed economy. Now in this video we are going to discuss very important question, that is explain the concept of vicious circle of poverty and measures to break vicious circle. Now let us understand what is vicious circle of poverty. Suppose there's a man who is destitute, not having money to feed himself, and just because he is not getting enough food, his body is also not getting vitamin, minerals, protein or etc. As a result, his body will become weak. And what will be the consequences of this? His weakness will definitely reduce his efficiency of doing any work, right? Now I wanted to ask a question. Will you provide any job to a person who is very weak, can't even do any work? According to me, a rational employer will definitely not provide job to a person who is very weak. Suppose a man provide him a job, will he give him higher level of income? I don't think so. So what happens? The person who is physically weak will definitely get lower salary than the person who is physically fit. So what did we get from the example? We get that a poor person will become more poor just because of unfavorable forces tending to act and react one another in such a way as to keep a poor man in a state of poverty. This is what vicious circle of poverty. दिस इज सेम लाइक कि आप किसी चीज़ में फंस गए हो और उस सर्कल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, जस्ट लाइक पॉवर्टी. आप गरीबी में एकदम फंस चुके हो एंड आपकी जो सिनेरियोस है, जो भी सिचुएशंस हैं, वो सारी सिचुएशन इस तरीके से वर्क ऑन कर रही है और रिएक्ट कर रही है कि आपकी कंडीशन और बेकार होती जा रही है. नाउ इफ़ वी रिलेट इट विद द कंट्री, एक कंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड इकनॉमी है, that means backward economy, that means economy doesn't having any infrastructure, no big building, no machinery, no equipment, no work. All the human power of backward economy is in the situation of unemployment. अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट ऑफ कोर्स होगी, क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो क्या होगा? इसका मतलब है कि लो रीड इनकम, इट्स देयर इज अ मिस्टेक, लो लेवल ऑफ इनकम. किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि इनकम भी बहुत ही लो होगी. अगर इनकम नहीं है आपके पास तो आप, in the earlier classes we have studied about the APC, that is average propensity to consume. It means कि आपकी जो भी इनकम है उसका कितना पोर्शन आप अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, राइट? सो इन द अर्लियर क्लासेस in the 12th standard we have studied that backward economies APC rate is higher. They spend their huge amount of income on consumption. They do not save. So if they will not save, their saving will be low. As if you are having low saving or country having low saving, that indicate that their investment rate will also be low. We have all the point in vicious circle interrelated. बैकवर्ड इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी बैकवर्ड है तो उनकी इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, एंड सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. ना अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, इफ़ वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी, एंड अगेन वो कंट्री बैकवर्ड ही रह जाएगी. Now, what are the measures or solution to break this vicious circle of poverty? Now, we have two methods to solve the problem of vicious circle of poverty. First is supply side vicious circle, and the second we are having
solution to demand side vicious circle. Before going through this, let's recall what we have did till now. So we have discussed about backward economy. बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है वो हमने समझ लिया. बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है. तो अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वो मशीनरी वगैरह में या कोई इक्विपमेंट में, प्लांट वगैरह में अपना पैसे को इन्वेस्ट करे, क्योंकि वहाँ से कोई रिटर्न आने ही नहीं वाला. मार्केट में तो डिमांड ही नहीं है. मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? रीज़न इनकम का लो होना, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वो पैसे कहाँ ख़त्म या कंजम्पशन कहाँ करेंगे, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ विशियस सर्कल, कि हम कैसे इस सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं एंड पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं. तो पहला जो स्टेप है वो है सेविंग को बढ़ा करके. जो भी पीपल जो इकोनॉमी बैकवर्ड कंट्री में रहते हैं उनको, उनका जो पहला स्टेप है उनको सेविंग को इंक्रीज करना चाहिए. सो हाउ कैन दे सेव देयर सेविंग? उनको जो फिजूल के खर्चे होते हैं उन पे खर्चे या अपने इनकम को स्पेंड ना करके उनको उस पैसे को सेव करना चाहिए, ताकि जो भी पैसा सेव हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किसी एक फेवरेबल चैनल में हम यूज़ कर सके फॉर द फ्यूचर अर्निंग. Now, in order to get rid of supply side vicious circle of poverty in this country, people should be made to increase saving so that investment in productive channel may be encouraged. To increase saving, expenditure on marriage, social ceremonies और etc. should be curtailed. जो भी खर्चे होते हैं मैरिज पे, जो भी सोशल इवेंट्स वगैरह होते हैं लाइक इंगेजमेंट, मैरिज और पार्टी एंड ऑल, उन सब खर्चे को स्टॉप कर देना चाहिए, उनको कम कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो सेविंग, जो भी इनकम हो, जो भी सेव हो, उसको हम एक सही तरीके से आगे इन्वेस्ट कर सके फॉर द नियर और फ्यूचर अर्निंग. ये जो सोल्यूशन हो गया, ये सोल्यूशन हो गया डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए. जो कंट्री अंडर डेवलप्ड है वो लोग तो. So in this situation, it is the government duty to increase this saving by altering its fiscal policy. गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है, टैक्सेस को बढ़ा सकती है उनके टैक्सेस पे जिनकी इनकम हाई है, और उनको रिबेट दे सकती है जिनकी इनकम लो है. दिस इज हाउ सेविंग कैन बी इंक्रीज इन बोथ द इकोनॉमिक डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग. सेकेंड सोल्यूशन वी आर हैविंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए ताकि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ब्रेक हो सके. हाउ कैन इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को ही नहीं, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए. लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्प करेगी फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एंड द शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रेजेंट को बैलेंस करने में हेल्प करती है. सो शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट हेल्प पीपल टू गेट द नेसेसरी गुड्स एट फेयर रेट विच विल हैव फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन देयर स्किल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड साइड ऑफ solution to demand side vicious circle is, first we need to increase demand. Now what is demand for capital? कैपिटल डिमांड क्या है? ये वो अमाउंट होता है जिसे प्रोड्यूसर चाहता है कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करे, लाइक मशीन खरीद के इन्वेस्ट करे या कोई इक्विपमेंट खरीद के इन्वेस्ट करे. अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में काम की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों को जॉब मिलेगा. जब लोगों को जॉब मिलेगी तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ब्रेक हो पाएगी. Just like that, we have many more measures or solution to break the vicious circle. Like first, balance growth. गवर्नमेंट को ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए ताकि सप्लाई साइड और डिमांड साइड ऑफ मार्केट कैन मैच, और वहाँ पे एक सही प्राइस सेट हो सके. ऐसा ना हो कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है, जिससे कि मार्केट एकदम नीचे जा रहा हो, और ऐसा भी ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, जिससे कि प्राइस जो हो रहे हैं प्रोडक्ट के वो बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहे हैं. नाउ ऐसे ही और भी तरीके हैं. प्लानिंग भी हेल्प करती है ग्रोथ के लिए. किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए आपने नोटिस किया होगा कि बिजनेस करने के लिए भी
पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, किस चीज़ का बिजनेस करे, किस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। इस टाइप की प्लानिंग से जो प्रोड्यूसर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो वैसे ही पॉवर्टी से निकलने के लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को भी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि ये विशेष सर्कल ब्रेक हो सके। ऐसे ही हो सकते हैं लैक ऑफ एनकरेजमेंट, क्योंकि मार्केट में कोई कहीं भी डिमांड नहीं है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये होती है कि पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा प्रोड्यूसर्स को। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री आपको अवेलेबल कराई जाएंगे और एक्सेट्रा। इस तरीके से गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर्स को और इन्वेस्टर को एनकरेज करना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट को खुद भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास खाली पड़े हैं, जिनका फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उनको भी पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि इस विशियस सर्कल को ब्रेक किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।